Good morning, everyone. So today we'll start again the concept of networking. And for that, as usual, I share a screen for you. I'll share a screen so that I'll show you the syllabus part, the revised syllabus, and I'll teach you accordingly. So we are starting now. The screen is shared for you. This video processing is also going on. Just a minute. So this Python programming has come here. इसको बंद कर देते हैं. This also I minimize. Many things are open here. It is creating confusion. So we'll come to the syllabus part. Revised syllabus starting. And Lavish, last topic covered was, please let me know. Please say, the last topic covered was, Lavish. Lavish, are you there? Lavish, last point क्या था बेटा? Sir, communication in mobile 1G 2G. Okay, 1G 2G. Okay. So थोड़ा थोड़ा सा इस पे डेफिनेशन लिख लेते हैं कि 1G क्या था, 2G क्या था, 3G, 4G, 5G. चलो start करो. Mobile telecommunication technology. Network means the generation. The G wireless network refers to the generation of the wireless network technology. 1G के बारे में लिखो. It is the first 1G. It is the first ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे भाई? It is the first analog cellular technology which started in 1980s. One G covers radio telephone system. And was designed for voice calls. Second लिखो 2G. It is the first digital cellular technology. It is the first digital cellular technology. It started in 1990s. It has improved sound quality, better security, GSM started which allows dial-up data calls digitally. Next is your 3G. 3G
has the digital cellular system and it improved the speed up to 2 Mbps. एक मिनट. It improved the speed up to 2 Mbps for IMT 2000 standard. ब्रैकेट में लिख रहा स्टेशनरी, ब्रैकेट में लिखना है स्टेशनरी स्पीड, यह मतलब स्टेशनरी स्पीड थी. एंड मोबाइल स्पीड ऑफ 384 kbps and mobile speed of 384 kbps kilobytes per second for 3G. For 3G. It has the feature of broadband, packet-based transmission, feature of multimedia, text, voice, video. अब ये जो 384 लिखाया था बेटा, ये ट्रू स्पीड की बात कर रहा हूँ. कहीं कहीं में 3G में लोग कहते थे 2 Mbps तक स्पीड है, मगर सच्चाई नहीं थी. यू नो दैट. नेक्स्ट यू राइट 4G. 4G is all about faster internet. 4G is all about faster internet speeds. It has improved calls, audio, video compared to 3G. It has now providing the speed up to. It is now providing the speed up to 100 Mbps. Low latency, LATENCY. लो लेटेंसी बोलते हैं बेटा जब किसी डेटा को एक्सेस करते हैं तो जो एक्सेस करने का टाइम होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक चीज़ रखी हुई है, उस चीज़ को उठाने में भी कुछ समय लगता है कि नहीं, तो वो टाइम लेटेंसी टाइम कहलाता है. जैसे ये टर्म स्टार्ट हुआ था जब हार्ड डिस्क, व्हेन वी यूज हार्ड डिस्क, एंड like hard disk is considered as random, but actually it is not a random access device, it is known as pseudo random access device. तो जो डेटा को पिक करने का टाइम लगता है, दैट इज अ लेटेंसी टाइम, कि कितना समय कितना देर लगी उसको पिक करने में, दैट्स अ लेटेंसी टाइम. सो इसमें है लो लेटेंसी, बहुत कम टाइम लगेगा एक्सेस करने में, पता ही नहीं चलेगा. लो कॉस्ट कंपेयर टू 2G एंड 3G. कॉस्ट में भी बहुत फर्क आ गया 2G एंड 3G. अगर आप इस स्पीड और इतना नेटवर्क में पहले फ्री नहीं होता था, आजकल तो पूरा पूरा फ्री है. लो कॉस्ट. 5G लिखो.
अच्छा, मल्टीमीडिया फीचर्स, इट हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, सब कुछ होता है। ये 4G है। 5G, फिफ्थ जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, supports cellular data network, and it has promised to give speed up to 100 gigabytes per second. 100 gigabytes per second. It can be 40 to 100 times faster than 4G network. 4G network. अब जरा एक चार्ट बना लो। तो आपको ये जल्दी से अच्छी तरह से कंपैरिजन करा देते हो। तो आप इस तरह से कॉपी में लिख लोगे तो आपको आसान रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या क्या लिखा है इन्होंने टेक्नोलॉजी में? टेक्नोलॉजी लिख लो, यहाँ पे लिख लो बैंडविड्थ, यहाँ पे लिख लो सर्विसेज, यहाँ पे लिख लो स्विचिंग टेक्निक। मैंने स्विच लिखा, समझ जाना बेटा। अब यहाँ पे लिख लो 1G, यहाँ पर बैंडविड्थ 2 kbps। ठीक है, इन्होंने स्मॉल में लिखा है, मैं भी स्मॉल में लिख दूँ, किलो बिट्स होगा। अगर स्मॉल है तो किलो बिट्स और कैप्स है तो किलो बाइट्स। 2 kbps। ठीक है, सर्विसेज लिख लो, एनालॉग। सर्विस में लिखो, नहीं सॉरी टेक्नोलॉजी था ये, एक यहाँ पे छूट गया मेरा। तो ये टेक्नोलॉजी की जगह ये लिखो जनरेशन है यार, ये गलत लिखा है बुक में, ये जनरेशन लिख दिया। ये टेक्नोलॉजी लिखो, और ये सर्विसेज लिखो। तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या टेक्नोलॉजी थी। सर्विसेज लिखो और ये वाला लिखो स्विचिंग। इस तरह से आपको करने में आसानी रहेगी। 1G तो याद भी हो जाएगा, 2 kbps एनालॉग। अब इसमें सर्विसेज में मोबाइल टेक्नोलॉजी में वॉइस ओनली। ठीक है, स्विच में लिखो सर्किट स्विचिंग। याद है आपको पढ़ाया था मैंने, ये टेलीफोन लाइंस के लिए यूज़ की जाती थी और अभी भी यूज़ की जाती है। 2G, अब 2G में लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ ये 2 था, ये 14 से 16 kbps। एनालॉग में लिख लो, सॉरी इसमें सर्विसेज में या टेक्नोलॉजी में पहले लिखो डिजिटल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इसमें लिख लो वॉइस एसएमएस। वॉइस अलग है, एसएमएस अलग है।
और यहाँ पे जो सर्किट कर लो, सर्किट में आप लिख लो सर्किट फॉर नेटवर्क, सर्किट फॉर नेटवर्क, सर्किट फॉर नेटवर्क। 3G में लिखो, 3G में मैक्सिमम मैंने बताया 2 Mbps, होती नहीं है मगर कोई बात नहीं, 2 Mbps ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड। इसमें लिखो इंटीग्रेटेड क्वालिटी वॉइस, क्वालिटी वॉइस वीडियो, क्वालिटी वॉइस वीडियो, ये अलग अलग हैं, वीडियो, ठीक है, डेटा सब कुछ आ गया था। नेक्स्ट पैकेट, इसमें लिखो पैकेट स्विचिंग, पैकेट आ गया था, सर्किट स्विचिंग के बाद अब ये पैकेट आ गया। 4G में लिखो 200 Mbps, ठीक है। अब इसमें इन्होंने यूज किया है यूनिफाइड आईपी, यूनिफाइड आईपी। ये चीजें लगभग सेम है, ये चीजें सेम है, ठीक है, मैंने सेम कर दी। इसमें लिख लेना और थोड़ा सा बढ़ा लेना वो सारी चीजें लिखने के अलावा, डेटा, डेटा प्लस वॉइस, प्लस वॉइस प्लस वीडियो, इंटीग्रेटेड, या ऐसे लिखो कवर्ड, कवर्ड ओवर आईपी, सही लिखवा देते हैं। और यहाँ पर भी जो अब इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने बोला इंटरनेट, पैकेट स्विच नहीं है मगर इंटरनेट नाम दिया है इसे। नेक्स्ट आता है 5G, 5G ग्रेटर देन 1 Gbps, ग्रेटर देन 1 Gbps, एक से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी आने वाले दिनों में। इसमें यूज़ होगा 4G जो है प्लस www, यहाँ पर ही लिख लो बेटर क्वालिटी, सब ये सारी चीज़ें हैं बेटर, बेटर क्वालिटी, बेटर क्वालिटी की स्पीड रहेगी, वेरी हाई स्पीड, बाकी चीज़ें सब कुछ रहेंगी जो पहले था 4G में। वेरी हाई स्पीड, इंटरनेट, इसको भी इन्होंने नाम दिया इंटरनेट, इंटरनेट। Understood? Those who have already there, please. Understood or not? नेक्स्ट, अंडरस्टूड दिस वन कॉन्सेप्ट। तो मैं आगे बढ़ूंगा।
एटलीस्ट शो थम्स अप एनी ऑफ यू। आपको इतनी अच्छी तरह मैंने पॉइंट वाइज करवा दिया ताकि आपको याद भी रहे। गुड। कृतिका लेट ज्वाइनर, इतने देर में आई क्लास में। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बिफोर दैट आई विल चेक द सिलेबस। अपना सिलेबस यहाँ तक हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेन प्रोटोकॉल सच एज SMTP। SMTP अब यहाँ पर बेटा कुछ चीज़ें याद रखिएगा। ये प्रोटोकॉल्स के बाद इन्होंने बहुत सारे सिलेबस बीच बीच से काटे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब आप लोगों को कॉमन सेंस यूज करना है। एक और लिख लो, आप यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लो। मोबाइल प्रोसेसर्स, मोबाइल प्रोसेसर। अब आपको ये सब पता है कि मोबाइल प्रोसेसर में कौन कौन से आते हैं, तो आप चाहो तो नाम लिखना लिख लो। Smartphones or the mobile phones which we use today use following processors: Apple A8, A9, A10, etc. MediaTek Helio, Helio क्या है देख लेना, Helio, P10, P20, X20, X30, NVIDIA, Tegra, TEGRA, X1, K1, etc. Huawei Kirin, 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 960, 955, 950. Samsung 8890, सैमसंग XCNOS लिखा था, सैमसंग XCNOS 8890, 7570, 7420, etc. Qualcomm QUALCOMM, स्नैपड्रैगन, Qualcomm स्नैपड्रैगन, इसका नाम इसमें जो है स्नैपड्रैगन 835, स्नैपड्रैगन 820, etc. तो ये सारे हैं। आप और भी टेक्नोलॉजी है, मैं ये नहीं कह रहा यही है जो बुक में थी, और जितना पॉइंट ऑफ सिलेबस था उतना मैंने आपको बताया है। नाउ कम टू द पॉइंट योर नेक्स्ट जी। इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोटोकॉल सच एज SMTP, POP प्रोटोकॉल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, VoIP, वायरलेस वाईफाई एंड वायरलेस। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये मैं अभी आगे लूँगा, पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिखिए। A two-way video phone conversation, a two-way video phone conversation among multiple participants is called video conferencing. Is called video conferencing. अब इसमें लिखो बेटा protocols for chat। अब चैट की डेफिनेशन तो पता है ना बेटा, चैट की लिख लो। ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज नोन एज चैट। ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इन रियल टाइम इज कॉल्ड चैट और चैटिंग। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ चैट। ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इन रियल टाइम इज कॉल्ड चैटिंग। SMS तो पता ही होगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस इज द ट्रांसमिशन ऑफ शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस, इज द ट्रांसमिशन ऑफ शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस। अब यहाँ पे जो पॉइंट लिखवा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिखना। प्रोटोकॉल्स फॉर चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द मोस्ट कॉमन, ये पॉइंट वाइज करके लिखना है या एस्ट्रिक लगा के लिखना। द
the most common chat protocol is, first point पे लिखना, most common chat protocol is IRC, Internet Relay Chat. It is a simple text-based conferencing protocol involving a number of users, spread across a number of interconnected servers, Second point, most common video conferencing protocols are H323, and SIP, Session Initiation Protocol. Abbreviation याद रखना, Session Initiation Protocol. लिखिए, Session Initiation Protocol is an IP telephony signaling protocol. Is an IP telephony signaling protocols used to establish, modify, and terminate VoIP telephone calls. अब VoIP भी बता दूंगा. And VoIP telephone calls. It works with both IPv4 and IPv6. Now IPv4 and IPv6 was a part of syllabus last time. अभी नहीं है, तो अब मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ. IPv4 and IPv6. VoIP लिख लो. Now VoIP last. आज की क्लास में लास्ट है ये. Voice over Internet Protocol, VoIP. When you type now, so ऐसे टाइप किया करो जैसे इसमें लिखा है VO, कहाँ गया, लाइक VoIP ऐसे लिखा करो. VoIP, बस मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास. VoIP, Voice over Internet Protocol, that enables voice communications over the internet through the compression of voice into data packets, that can be transmitted over data networks, and then converted back into voice at the other end. That's it. अब अगली क्लास बात करो. Take care, bye. We'll meet in the next class. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you, sir.